کو قانون کو اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی رکھ لیتا ہے اپنے دل کے اندر اور وہ اپنا لیتا ہے اس کا چرچا رب کرتا ہے، اس کا چرچا رب کرتا ہے۔ رب قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِالنِّعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کرو چرچا ان کا، کن کا چرچا کرے مولا، کن کا چرچا کرے؟ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میں سرکار نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے رخ پھیرا، دعائے سلام ہوئی اور صحابہ کی فرمائے صحاباؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان بندوں کا محبوب ہوں، میں ان بندوں کا محبوب ہوں اور وہ میرے محبوب ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ لوگوں کیا میں تمہارا رسول نہیں؟ کیا میں تمہارا نبی نہیں؟ کیا تمہارا مولا نہیں؟ تو مولا، نبی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے فرمایا جی صدقتا، سچ ہے یہ بات کہ تم ہمارے نبی ہو، صدقتا، سچ ہے یہ بات کہ تم ہمارا آقا مولا ہو، صدقتا، سچ ہے یہ بات کہ تمہاری سی عطا کسی نے نہ کی۔ تو صحابہ کے نبی رسول ہو گئے، صحابہ کے نبی رسول ہو گئے، تو ہمارے سامنے تو سرکار نے الفاظ بولا نہیں، آپ نے کہاں بولا محفل نبی میں، مسجد حرم میں، جگہ جگہ پہ تقریروں میں، صحیح کہ میں تمہارا نبی رسول ہوں۔ آپ فرمایا آپ دو ہوا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کے سامنے فرمایا، ہمارے سامنے نہیں، لیکن پھر بھی ہم، ہمارا آقا مولا، ہمارا نبی، ہمارا رسول ہے، اللہ کا بھیجا اور سچا پیغمبر ہے، اور آپ کی عطا سے ہم بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے سامنے نہیں بولا، صحابہ کے سامنے بولا۔ تو صحابہ کے سامنے بولا تو یہ بات تو صحابہ تک خلاص ہو جاتی، 14 سال تک بات بھی ہم کیوں بولے؟ اگر ہمارے رسول ہو، نعوذ باللہ ہے ہی، اگر ہماری عقلیں کام کرتی ہو اور بولے کہ ہمارا رسول ہمارے سامنے تو بولا نہیں ہے، تو برابر دھیان نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی یا ایوہن بولا ہے، کیا فرمایا؟ یا ایوہ النبی، کیا فرمایا؟ یا ایوہ النبی، اے نبی تم ہر مخلوقات کے سب سے نبی ہو، تب سے رسول ہو، تب یہ مخلوق بھی نہ بنی تھی، یہ مخلوق بھی نہ بنی تھی۔ کیا انہیں پتا نہیں ملی یا ایوہ النبی فرمایا؟ تو یا کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے سامنے ظاہر نہ ہو تو بھی اس کی تعریف کرو جس کو میں نے بنا رکھا ہے، اور جب تمہارے سامنے آ جائے تو اس کو بھی یا بولو، اور جو تمہارے سامنے نہ ہو اور جو پیچھے سے آئے اس کو بھی یا بولو۔ یا ایوہ النبی کا مطلب ہی ہوتا ہے ہونا، یا کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ، یعنی یا اللہ، یا اللہ۔ نہ دیکھا اللہ کو کسی نے نہیں، کسی نے رب کو نہیں دیکھا ہے، رب دیکھدار کی چیز ہے، دیدار کرنے کی طلب ہے ہمارے کو، لیکن رب کو نہیں دیکھا، کیسی بھی عبادت کر لے رب کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں نے رب کو نہیں دیکھا، جن نے رب کو نہیں دیکھا، بشر نے، انسان نے نہیں، کوئی مخلوق نے رب کو نہیں دیکھا، لیکن بولتے یا اللہ۔ یا کا مطلب ہی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا۔ اسی طرح میرا آقا مولا
या अय्युहन سبحان اللہ या अय्युहन नबी रहमतुल्लाह व बरकातहू अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। तैयार नहीं पढ़ते अपने سبحان اللہ तो ये मखलूक तुम्हारा नबी रसूल उस वक्त भी था जिस वक्त तुम्हारा वजूद इंसानों में खलक में ना आया जिसम में। صحیح بالکل بالکل जब तुम्हारा वजूद रूहों में था, जब तुम रूहों के अंदर थे, रूह अरवा पे थे, तब भी ये तुम्हारा नबी रसूल मोहम्मद मुस्तफा था। صلی اللہ علیہ وسلم आज तुम माँ के पेट में आए तब भी नबी रसूल है। माँ के पेट से जब तुम आए दुनिया में पांव रखा, सोच अकल सलीम थी, तब भी तुम्हारा नबी रसूल यही है। और तुम्हारे बाद भी या अय्युहन नबी यही नबी रहने वाला है। سبحان اللہ واہ بھائی واہ यही नबी رہنے والا रहने वाला है और यही नबी रहेगा। سبحان اللہ यही नबी रहेगा। तमाम मखलूक, फिर बोल रहा हूं, समझ में जा रही है आप लोग के? صحیح صحیح तमाम मखलूक के अंदर हर मखलूक आ गई, वाहिद एक ही صحیح मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरदार बनकर बैठा है सबका। जब आदम अलैहिस्सलाम भी पढ़ते थे कलमा मोहम्मद मुस्तफा, ईसा अलैहिस्सलाम भी कलमा पढ़ते थे मोहम्मद मुस्तफा का। जितने भी नबी आए तमाम ने कलमा तैयब पढ़ा, वो भी मेरा आका मौला का। سبحان اللہ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और उनके उम्मत में दाखिल हो गया। سبحان اللہ واہ بھائی क्या होगा? नबी का कलमा जो पढ़ ले और अल्लाह की इताअत मान ले, रसूलों का कहना मान ले, तो वो उम्मती हो गया। अल्लाह का कहना मान ले, वो उम्मती हो गया। नबियों ने नबी का कलमा पढ़ा, मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफा कलमा पढ़ा, आदम से लेके ईसा तक सब उम्मती मुस्तफा हो गए। इताअत अल्लाह की करी नहीं, अतिउल्लाह। صحیح بالکل हर नबी ने क्या किया? अतिउल्लाह, अल्लाह का कहना माना। और अल्लाह ने फरमाया, ए नबी रसूलो, ए नबी रसूल, तुम्हें मैंने पैगंबर बनाया, रसूल बनाया। मूसा, लूत, सुबैत, याकूब, इब्राहिम, इस्माइल, तमामों को कह दो, खबर दो दुनिया वालों को, صحیح दो मखलूक को खबर दो, तुमसे जो नीचे तालिब बनकर बैठे हैं, कुछ चाहते हैं अल्लाह से, तुमसे कुछ चाहते हैं, उनको खबर दो। जो तुम्हारे सहाबा है नबियों, उनको खबर दो कि हमसे भी, हमारे दौर से भी एक दौर और आने वाला है जिसके अंदर मोहम्मद आने वाला है। سبحان اللہ और वो वक्त आ जाए और तुम वो दिन पालो तो उन पे कलमा पढ़ लेना जिस तरह हम पढ़ते हैं। سبحان اللہ واہ بھائی نبی نبی سبحان اللہ वो अम्मा बिन निमती का रब्बी का फादिस करो चर्चा उन लोगों का صحیح واہ بھائی जिसने तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा का रास्ता बताया और अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता बताया। سبحان اللہ واہ بھائی करो उनका चर्चा। صحیح कौन है वो लोग जिनका हम चर्चा करें? तो नबी कौनैन फरमाते हैं कि वो लोग सादिकीन, صحیح سبحان اللہ सच्चे होंगे, صحیح परहेजगार होंगे, पंचगाना नमाज पढ़ते होंगे और मेरी उम्मत का हर हाल में ख्याल रखते होंगे, سبحان اللہ मेरी उम्मत पे हर वक्त उनके लिए दुआ करते होंगे। साहबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, उठे, बहुत सारा मतलब छोटी चीज बता के चला, या रसूल अल्लाह वो कौन है? आप इसका खोल कर बताएं, आप इसकी तफसीर कर दीजिए। फरमाया, वो जात صحیح जो वो सहाबा भी नहीं, वो सौदा भी नहीं, سودا بھی نہیں واہ بھائی سبحان اللہ صحابہ بھی نہیں سودا सहाबा में भी नहीं, सौदाओं में भी नहीं होगी, ना सहाबा में होगी ना सौदाओं में होगी, लेकिन अंबिया लोग तकते होंगे, واہ سبحان اللہ واہ सौदाओं तकते होंगे, अंबिया तकते होंगे, सौदाओं तकते होंगे। हर रसूल अंबिया सौदाओं तकते होंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए मिंबर नूर का बिछाता होगा। سبحان اللہ واہ بھائی कयामत का दिन होगा, वो लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला कयामत के मिंबर बिछाएगा। سبحان اللہ टेबल, कुर्सी वगैरह, आप समझ रहे हैं, तखत सब लगा के रखेगा और नूर का मिंबर बिछा के रखेगा। سبحان اللہ अंबिया और रसूल बोलेंगे, मौला तखत बिछा रहे, नूर का, फरिश्तों जाओ तखत बिछाओ, नूरी बिछाओ। बिछा दिया, यहाँ कौन आने वाला है, कौन जिसमें बैठेगा? ये वो जात है, ना वो साबित है, صحیح ना वो साहबी है, ना शहीद है, صحیح ना साहबी है ना शहीद है। अंबिया रसूल से बड़ा दर्जा किसी का नहीं हो सकता, लेकिन अंबिया तकेंगे। صحیح سبحان اللہ साहबा से बड़ा दर्जा किसी का नहीं हो सकता,
अंबिया के बाद सहाबा है, सही उनसे बड़ा दर्जा किसी का सऊदियों से बड़ा दर्जा, लेकिन ये तीनों कौम तकेगी। सही सुभान अल्लाह कौन है, कौन आएगा? यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त उस मिंबर पर जो बैठने वाला होगा, ना उसने नबी को देखा होगा, ना सहाबा को देखा होगा, ना तबे ताबीन को देखा होगा, एक वलीउल्लाह होगा, सुभान अल्लाह वाह वाह एक अल्लाह का दोस्त होगा, सुभान अल्लाह वाह वाह एक नबी का उम्मती होगा और एक वली होगा। और वो मिंबर अल्लाह ताला नूर का बिछाएगा। ये लोगों में आज फिर कहना चाहता हूँ, आज अल्लाह फरमाता है मेरी तरीके अपनाओ, अपना सुभान अतीउल्लाह अतीउर रसूल, अल्लाह का कहना मानो, रसूल का कहना मानो। अरे तब मानी तो रहे। सही अल्लाह कयामत के दिन मिंबर नूर का बिछाकर उनकी रोशनी करता है, टेबल पे बिठाता है, उजाले करता है, करा ना। हम लोग मोहिद्दीन चिश्ती का संदल बनाते हैं, सुभान अल्लाह वाह वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मोहिद्दीन चिश्ती का रहमतुल्लाह का संदल बनाते हैं, कभी खाजा की 11वीं बनाते हैं, कभी हसन बसरी, तो कभी राबिया बसरी, कभी मौलाए मुश्किल कुशा, कभी हसन हुसैन करीम। सबके जलसे में हम खड़े होके उनके लिए कभी अच्छे से अच्छा लिबास मिलवाते हैं, कभी कुमकुम लगाते हैं, कभी लाइट लगाते हैं, उजाले लगाते हैं। भाई ये दरगाह में लाइट उजाले चद्दर मत जाओ, हाँ भाई नहीं चढ़ाए तुम्हारे केरेब ना चाह, जबकि रब ये खुद करने वाला है। जब वलीउल्लाह के लिए, अल्लाह के नेक बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला नूर बिछाता है, मिंबर बिछाता है, तो हम भी वही काम करते हैं कि मोहिद्दीन चिश्ती का संदल बनाते हैं। बहता वो अम्मा बिन निमती का रब्बी का फादिस, अम्मा बिन निमती का रब्बी का फादिस, करोन का चर्चा, जिसको मैंने चुन लिया। रब ने फरमाया मैंने चुना और मैंने मोहब्बत की। सुभान अल्लाह अल्लाह ने मोहब्बत करी, किससे करी? मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। फरिश्तों आओ, फरिश्ता ए फरिश्तों जिब्रील अलैहिस्सलाम, ए फरिश्तों मैं इस मोहिद्दीन चिश्ती से मोहब्बत करता हूँ, मैं खाजा मोहिद्दीन चिश्ती से बात करता हूँ, मैं राबिया बसरी से मोहब्बत करता हूँ, मैं हसन बसरी से मोहब्बत करता हूँ, मैं जुलाबुद्दीन से मोहब्बत करता हूँ। तमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो भी अल्लाह के करीब वलीउल्लाह है, जो अल्लाह का वली है, जो नेक बंदे हैं, उनसे अल्लाह फरमाता है मोहब्बत मैं करता हूँ, पहले मैं इनका महबूब होता हूँ, फिर ये मेरे महबूब हो जाते हैं। अल्लाह पहले चुन लेता है, इनका महबूब हो जाता है, फिर अल्लाह इनको महबूब बना लेता है। और जब इनको महबूब बनाता है तो बोलता है आओ फरिश्तों मैंने इनसे मोहब्बत करी है, तुम इनसे मोहब्बत करो। जब फरिश्ते मोहब्बत करने लगते हैं, मौला हम कैसे मोहब्बत करें, जिस तरह मैं मोहब्बत करता तुम भी करो। फरिश्ते जाते हैं, आसमानों के तमाम फरिश्तों को बोलने लग जाते हैं अल्लाह ने उस वलीउल्लाह से मोहब्बत करी, खाजा से करी, हसन हुसैन से करी, सरदार मौला से करी, गौसे आजम से करी, मोहब्बत करिए। फरिश्ता तुम भी मोहब्बत करो, तो फिर अल्लाह फरमाता है रुको, सिर्फ तुम्हारे अंदर मत करो फरिश्तों, तुम्हारे अंदर खबर मोहब्बत की ना दो तो किसको दे रहे? जमीन पे जाओ, जमीन पर जाओ और जमीन पर जाकर देखो कि किसका दिल मोमिन के करीब है, किसका दिल मोहम्मद के करीब है, किसका दिल पंजतन के करीब है। जो अल्लाह से करीब होना चाहता हो और अल्लाह जिससे चुन ले उसकी वलीउल्लाह की मोहब्बत डाल दे। वो मोहब्बत डालना अब अल्लाह के हाथ में है, फरिश्तों के हाथ में है कि वली की मोहब्बत किससे कराए। अब हम कहे भाई मैं वली को नहीं मानता, तो मत मान, अल्लाह ने तेरे दिल में वली की मोहब्बत डाली ही नहीं। ये मोहब्बत करवाना तो रब का काम है। मैं खाजा से मोहब्बत करता हूँ तो रब का काम था, तू खाजा से मोहब्बत नहीं करता वो रब का काम है। रब ने कहा मैंने चुन लिया, मैं उससे मोहब्बत कर रहा हूं, तुम उससे मोहब्बत करो। फरिश्तों को फरमाया फरिश्तों उनके दिल में मोहब्बत डाल दो, जिसके दिल के अंदर इश्के रसूल हो, इश्के मुस्तफा हो, इश्के पंजतन हो, जो सीरत मुस्तफा पकड़ ले वो गौसे आजम को चालेगा, वो गरीब नवाज को चालेगा। ये अल्लाह के अंदर है वलीउल्लाह से मोहब्बत करवाना। तुम्हारे मेरे बस की बात नहीं कि हम बोले हमारे बच्चों को अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर, सीरत पर चल, ठीक है सीरत पर तरीका बताया, तो खाजा से मोहब्बत भाई वो करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। और हम देख रहे हैं हमारे घरों में हो रहा है कि एक भाई औलाद रसूल से मोहब्बत करता है तो एक भाई नफरत करता है, एक भाई सुन्नी मरकज पर चलता है, एक भाई सुन्नी मरकज को छोड़ देता है।
हमारे खानदान में भी हो रहा है, सब फितने चालू है, लेकिन उसमें सिगवा गिला करने की कोई जरूरत नहीं कि मेरे खानदान में ऐसा क्यों हो गया, आधे इधर चले गए, आधे तो चले गए, मेरे भाई में ऐसा क्यों, आधे में इधर हो गया, वो उधर हो गया। नहीं, ये तो अल्लाह की मर्जी है। बिल्कुल तौफीक हिदायत देने वाला वो है, वो जिसे चाहे उसे खाजा का नाम ले ले। वो अम्मा बिन निमती का रब्बी का फादिस करो इनका चर्चा। आज उसने हुक्म दे दिया कि खाजा से मोहब्बत करो तो हम करते हैं, और बोलो खाजा कैसा है, तो बताया जाता है खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह के रसूल की अता है, मोइनुद्दीन चिश्ती मेरे नबी की अता है, गौसे आजम मेरे नबी की अता है, हसन हुसैन मेरे नबी की अता है। कल कौसर के अंदर से ये जाम है जो इनकी महफिल में बैठ जाता है, यकीनन अल्लाह उसकी शफाई कर देता है। ये अल्लाह का हुक्म है। जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत कर ले, जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है, अल्लाह फरमाता है मैंने उससे मोहब्बत की। अब तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो, हाँ, तो बताओ उसकी सुन्नत पे चलो, उसके रास्ते पे चलो, बैठो नेक बंदों के पास, बैठो नेक लोगों के पास, जाओ मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में, जाओ गौसे आजम की बारगाह में। निस्बत हासिल है या है, क्या है वो लोग, या है, यानी अल्लाह ने उनको अपने तरफ से गैब से रिज़्क़ दे रखा है। बरज़ख की दुनिया का रिज़्क़ उनका अलग हो चुका है, और अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दे रखी है कि पल में चाहे तो मदीना पहुंच जाए, पल में चाहे तो हिंदुस्तान में आ जाए, पल में चाहे तो सातों आसमान के करीब पहुंच जाए, और पल में चाहे तो ततोसरा जमीन के नीचे चले जाए। अल्लाह जिससे राजी हो जाता है, फरमाता है मैं जिससे राजी हो जाता हूँ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इन्होंने मेरे खातिर अपनी नींदें छोड़ी, अपना कारोबार छोड़ा, अपना ऐशो छोड़ा, और मेरी नमाज को कायम की, तो अब अल्लाह तबारक व तआला कहता मैंने तुझे इनाम बना दिया, और ये इसका इनाम है, अभी जन्नत नहीं। क्या बात है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अभी जन्नत नहीं, अभी जन्नत नहीं है। जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है, उनमें से इनको हवा मिलती जाती है, जन्नत की खुशबू हवा, उसमें से खाना मिलता जाता है गेब का, लेकिन जन्नत नहीं। जन्नत की अदनी सी चीज मिल जाए तो वो कयामत तक जिंदा गौसे आजम बन जाए, वो वलीउल्लाह बन जाए। तो बताओ जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अगर जन्नत मिल जाए तो क्या होगा, सुभान अल्लाह, जन्नत में क्या नहीं होगा। लेकिन कोई भी अल्लाह का वली जन्नत के लिए ना उसने कभी इबादत करी है, ना जन्नत की डर से इबादत करी है, ना जन्नत की लालच से इबादत करी है, ना जन्नत की डर से इबादत करी है। वाहिद उसने इबादत करी है और जिक्र करा है तो अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने, मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत पकड़ने के लिए। और जो बस्ती में बैठता है तो मस्जिद मुस्तफा को फैज पहुंचाने के लिए। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में आते हैं तो हिंदुस्तान को इस्लाम कबूल करवाते हैं। सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान में आए, लाहौर जमीन का नाम था, इलाके का नाम लाहौर था, हिंदुस्तान था, हिंदी, वहां पर आए दाता हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर 40 दिन आपने वहां चिल्ला किया, रुके, वहां इबादत करी, उसके बाद लोगों को मुसलमान बनाया, वहां से अजमेर तक पहुंचते, नेव परिवार को, सुभान अल्लाह, नेव या 900 परिवार को आपने इस्लाम कबूल करवाया, सुभान अल्लाह, राजस्थान के अंदर, सुभान अल्लाह, और इस्लाम फिसाया, इस्लाम भेजा, इस्लाम दीन के खातिर बैठे रहे। सूफी है, बिल्कुल, सुभान अल्लाह, कौन है, सूफी है, मौलवी नहीं है, उलमा नहीं है, आलिम नहीं है, सूफी है, सुभान अल्लाह, सूफी है ना, सूफी गिना है, तुम्हारी मेरे अल्फाज में सूफी है, तुम्हारे मेरे अल्फाज में आलिम है, तुम्हारे मेरे अल्फाज में इमाम बने, आलिम बने, बगदाद गए, उलमा, आलिम, कारी, मुफ्ती, सबका लकब खाजा को मिल गया। अरे बराबर गौर के देख, ये लकब एक तरफ था, वो तो औलाद रसूल है, वो तो औलाद अली है, वो तो औलाद फातिमा ज़ोहरा है, वो औलाद हसन हुसैन है, और जिसके नस्ल पाक में पंजे तन का खून हो वो कभी मुरझाया नहीं करता, उसको किसी उस्ताद की जरूर पड़ती नहीं है। बहरहाल उस्ताद एक नाम का होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
या हसन अलैहिस्सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम, तुम्हारी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तुम तो है ने नूर, तुम्हारा घराना है नूर का। तुम्हारे घराने के साथ निस्बत रखने वाला गुनहगार वो भी बन जाता है नूर का। बिल्कुल सुभान अल्लाह, निस्बत रख के देख, सुभान अल्लाह, आके तो देख गरीब नवाज की बारगाह के अंदर, मोहब्बत करके तो देख, उनके तरीके तो देख। मौलवी को पूछे 5 टाइम की नमाज बता देगा, 5 टाइम की नमाज बताएगा, क्या है? बोले इल्म हुस्ना है। क्या है? आगे दरूद शरीफ पढ़ना इल्म हुस्ना है, पीछे दरूद शरीफ पढ़ना इल्म हुस्ना है। अरे नहीं रे, इल्म हुस्ना दरूद शरीफ के अंदर नहीं है, इल्म हुस्ना तो समझा ही नहीं है। सही, बिल्कुल। इल्म हुस्ना उसको बोलते हैं जिससे किसी का दिल ना दुखे। सही, बिल्कुल। वाह भाई वाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हुस्ना किसको बोलते हैं? किसी का दिल ना दुखता हो। और मेरे कुछ इल्म पढ़ने से, मेरे आवाज निकालने से कोई बंदा गुनहगार ना बन जाए, उसको कहते हैं इल्म हुस्ना। मेरे भाई तू ये कैसा इल्म हुस्ना लेकर आया जो नबी के सुन्नतों को तोड़ते गया और बोले इल्म हुस्ना है? नबी की सुन्नतें करार तो यह होती कि बिलाल अजान देते तो अजान के बाद दरूद इब्राहिम पढ़ते और दुआ पढ़ते। आज हमारे वहां के आलिम बोलते हैं नमाजी मुलबे ना जाने कौन से सुन्नी मेरे भाई है, कहते हैं इल्म हुस्ना है सरकार पे सलातो सलाम बोलना। अच्छा ये इल्म हुस्ना है? नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ना इल्म हुस्ना है? अरे इल्म हुस्ना नहीं है, वाजिब बात है, फर्ज है, फर्ज है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके तरीके भी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब भी अल्लाह ने फरमाया तेरी मर्जी पढ़ दुरूद सलाम पढ़, जब भी पढ़ना है पढ़, बैठ के पढ़, सोते हुए पढ़, खड़े होते हुए पढ़, काम करते हुए पढ़, चलते हुए पढ़। मेरे मोहम्मद मुस्तफा पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज, ज्यादा से ज्यादा सलाम भेज, और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। पढ़ नहीं सकता? सही, बिल्कुल, भेज। मुझको क्या करना, तू भेज। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह भेजे, अल्लाहुम्मा, अल्लाह तू भेज। बिल्कुल, तू सिर्फ सलाम पढ़, सही, सलाम पढ़, जितना पढ़ना इतना पढ़। लेकिन कानून मुस्तफा है, कानून मुस्तफा है। जब नबी ने फरमा दिया कि अजान के अंदर सिर्फ अजान ही दी जाए, तो तुम अजान के पहले दरूद सलाम पढ़ते हो, अच्छी बात है, सलाम पढ़ते हो, अच्छी बात है। तो सलाम के बाद कुछ देर रुक जाया करो। क्या है? रुक जाया करो। उस रुकावट के बाद, रुकू करने के बाद कुछ देर के बाद अजान दिया करो, वरना सलाम और दरूद अजान की गिनती में हो जाएगा तो अजान ना हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हुक्म तो था अजान पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिम पढ़ना और दुआ पढ़ना। आज हमने जगह जगह पे सरकार सल्लम को, अब तो ऐसा लगता है कि सुन्नी वही है जो माइक के अंदर सलाम पढ़े। भूल गए मेरे भाई वो हदीस। मेरा भाई बोलता है इल्म हुस्ना मानता हूँ, मेरे नबी पे जान देता हूँ। मेरे भाई नबी पे जान देने वाले, रुक जा, थोड़ा रुक जा। नबी की सुन्नत को खाली अपना ले, जान बाद में देना। बिल्कुल, तेरा वक्त भी बाद में दे, जान तो पूछ तेरा वक्त दे। क्या वक्त दे? कि देख मेरे नबी वसल्लम क्या फरमाया कि मेरी उम्मत को मगफिरत कर दे मौला, और जो नबी पंजतन को चाहता हो, रसूल करीम को चाहता हो, गौसे आजम जैसे हस्ती को चाहता हो, उसको मौत नहीं आती जब तक उसकी मगफिरत नहीं हो जाती। वो ऐसा आशिक भी तो बने। इन मौलवियों ने फिरा दिया। क्या किया भैया? फिरा दिया। क्या फिराया? देखे क्या फिराया? सलाम मेरे नाका का, अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका नूर अल्लाह। अभी मैंने 3 अल्फाज बोले आपके सामने, सरकार को सलाम भेजा, आपने सुने, साथ में आपने बोला, क्योंकि तुम्हारी निगाह तवज्जो मेरे तरफ है। बिल्कुल, कहाँ है? मेरे तरफ है, और मैं पढ़ रहा हूँ तो आप सुन भी रहे हो। लेकिन आप जुमा के अंदर माइक के ऊपर दरूद सलाम जो पढ़ते हो, तो तुम्हारे लिए तुमने किया इल्म हुस्ना है, तुमने किया ये जाहिज है, तुमने किया ये हक है। तो मैं भी मानता हूँ जाहिज है, इल्म हुस्ना है, सब ठीक है। लेकिन नबी की एक हदीस खड़ी है कि जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारा नाम निकले तुम्हारी उम्मत के सामने, तुम्हारा नाम निकले उम्मत के सामने,
اور تمہارا امتی ہونے کے بعد وہ تم پر سلام نہ کرے تو اس پہ نالت ہو. تو نبی نے فرمایا آمین. تو کتنی میری بہن اور بیٹیاں ہیں, کتنے میرے بھائی اور میرے باپ جیسے لوگ ہیں, میری ماں ایسے لوگ ہیں جو نبی کا سلام تو سنتے ہیں, اس کا جواب نہیں دیتے ہیں. اس کا گنہگار کون؟ اس مائک کے اندر سلام پڑھنے والے جو فتنہ لے کے بیٹھا اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں ابے تو گناہ سے بچتا ہے نہیں, تو نے مسلمان کو گناہ میں نہ دیا. علم و سنا اس کو بولتے ہیں جو مسلمان کو گناہ سے روکے, گناہ سے بچائے. تو نے بچانے کی جگہ گناہ میں نہ دیا. اگر نہیں پہ تو چاہتا تو علم و سنا کے اندر بیٹھ جائے جی بوستانی کی طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ. آجا بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح, آجا حسن بصری کی طرح, آجا رابعہ بصری کی طرح پڑھ کے دیکھ التحیات کے اندر. آگے مت جا, علم حسنہ واپر, اشہد ان لا الہ الا اللہ کے پر چلے جاتا ہے نا, برحق جا. لیکن اس کے پہلے ایک اور الفاظ آتا ہے السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چیزاں دو کلاک تک ولی پڑھتے تھے, آگے نہیں پڑھتے تھے, آگے نہیں بڑھتے تھے. کیوں نہیں بڑھتے تھے؟ کہ نبی کا چہرہ دکھ جائے, نبی کی آواز آ جائے. اور آتی تھی جب یہ ابراہیم بن ادم, جب یہ رابعہ بصری, کبھی حسن بصری, بشر حافی, علم و سنا انہوں نے ایسا واپرا. کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی نبی پہ سلام کر کر, کسی کو زبردستی کھڑا نہیں کرا. ارے یہ تو رب چاہے اس سے کام لے رہے, اللہ اسے توفیق دے اس سے کام لے. بھول گیا میرا بھائی, امت مصطفیٰ میں پوری کائنات نبی کی ہوئی, لیکن سب کسی کو کلمے کا موقع نہیں دیا, سب کسی کو نماز کا موقع نہیں دیا, کسی کو غیر اللہ بنا دیا, کسی کو نصارہ میں نہ کھا, کسی کو یہود میں نہ کھا, کسی کو ہندو میں نہ کھا, تو کسی کو کرسچن میں نہ کھا, وغیرہ وغیرہ میں نہ کھا, اور کسی کو مسلمان بھی بنایا تو نماز کا موقع نہیں دیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے. لیکن تو علم و سنا واپرے میرے بھائی عالم, حالف عالموں کو بولنا ہے, پہنچانا ہے یہ الفاظ کہ جو تم مائکوں میں کر رہے ہو یہ غلط ہے. میں دیکھتا ہوں کئی میری بہن بیٹی اپنے کاموں میں پڑی ہوتی ہے, نبی کا نام لکھتا ہے اس کے کام میں پڑی ہے. میرا بھائی گھومتا رہتا ہے, نبی کا سلام ہوتا رہتا ہے, اور نبی کا کانوں میں اس کی آواز جا رہی ہے, وہ سلام نہیں بھیج رہا نبی پہ تو وہ گنہگار ہو گیا. تو بتا تیرا علم سنا اس کیا کام کا جو کوئی نبی کی امت کو گنہ میں ڈال دے, نبی کی امت کو گنہ میں ڈال دے. وہ علم سنا کوئی کام کا نہیں. نہیں میرے نبی نے فرمایا سب سے بہتر میرے امت میں اور اسلام میں سب سے بہتر انسانوں کے اندر میرے امت کے اندر وہ بندہ ہے جس سے سب سے زیادہ میری امت کو فیض ملتا ہو, سب سے زیادہ فیض ملتا ہو. وہ بندہ بیٹھا ہو اور کوئی تکلیف لائے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بندے کے پاس آئے, وہ بندہ کسی کو اچھی راہ بتاتا ہوں, وہ سب سے بہتر بندہ ہے. وہ بندہ سب سے بہتر ہے, اور انہی کے لیے میں نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کرو ان کا چرچا. میں قیامت کے ممبر میں بٹھانے والا ہوں, تم میرے بٹھانے کے پہلے اپنے دلوں میں بٹھا لو, ان کے دل سے کرو. یہی محی چشتی ہے, یہی گوشہ کر. یہ تمہارے پیر و مرشد ہے, یہ تمہارا شیخ ہے, یہ تمہارا باپ ہے, یہ تمہاری ماں ہے. تعظیم احترام کرو, کسی بھائی بہن کا دل نہ دکھاؤ, اور کسی مسلمان کو زبردستی سلام اور درود اور نماز کے لیے گناہ میں مت ڈال. نبی کے قانون پکڑ کر چل. آج کی پوزیشن کے اندر خراجی ڈھونڈنے کے لیے ہم کہیں اور جاتے ہیں. ارے نہیں, آج تو سنیوں میں خراجی بیٹھے ہوئے ہیں, علم و سنا بول کے خراجی ہے, گناہ میں لاتے نبی کی امت کو, نبی کی امت کو گناہ میں لا رہے ہیں. ان کے سامنے غلط برتا کے نہ صحیح رشتے اچانوں کی تکبیر بولی جائے, نہ نماز کی تکبیر بولی جائے, نہ قرآن کی تلاوت بولی جائے. اپنی مرضی کا مولوی آ گیا, وہ نماز پڑھانا چالو پڑ گیا. مولوی کو کوئی بولنے جائے تو مولوی رکنے تیار نہیں, سمجھنے تیار نہیں, بولتا ہے کہ کہاں پڑھ کر آئے ہو. ہم تو احمد رضا خان رحمۃ اللہ کے بریلی سے آئے ہیں, ہم بہار سے آئے ہیں, ہم یو پی سے آئے ہیں. ارے بھائی جو جن کا نام لے رہا ہے وہ تو بہت بڑی ہستی ہے, احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ السلام. وہ نسبت تو لے کر آیا تھا تو کیا نبی کی سنت تجھ سے جاتی ہے؟ تو احمد رضا خان والا ہوتا تو نبی کی سنتیں جاتی کہاں؟ جو حضرت کو اگر سنی کوئی بولتا ہے مولوی کہ میں احمد رضا خان سے محبت کرتا ہوں, احمد رضا کو چاہتا ہوں, تو کتاب کھول کر دیکھ لے, فتح رضوی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اذان کی آواز
अजान की आवाज माइक में आज भी नहीं है, सही बिल्कुल आज भी इसका इतलाफ चल रहा है, सही बिल्कुल आज भी इतलाफ है। सही क्या है? इतलाफ। इतलाफ है। कुरान की तिलावत इतनी इज्जत से करो तुम्हारे कान में आवाज आए, सही। नमाज इतनी इज्जत से पढ़ो जितने तुम्हारे कान में आवाज आए, सही सलाम भी इतना इज्जत से पढ़ो जितना तुम समझ सको। सही आज का मौलवी तो जब तक माइक पे खड़े नहीं होएगा सलाम नहीं पड़ेगा और उशारे से बोलेगा आवाज बढ़ाओ। भाई कहाँ सुना रहा है? सही लोगों के सलाम कहाँ सुना रहा है? माइक का आवाज फांस करने के बाद, वॉल्यूम को फांस करने के बाद तो सुनाता किसको है? इस मोहल्ले वाले को कि अपने परिवार वालों को, किस महफिल वालों को? बोले नहीं, सलाम तो नबी पढ़ता था, नबी तो खामोशी में भी सुनते हैं, नबी तो चिकरे खपी में भी सुनते हैं, तुम मन में पढ़े नबी सुनते हैं, तो सोइले में पढ़ते नबी सुनते हैं, खामोश आंख बंद करके तो सुनते हैं, बैठे तो नबी सुनते हैं। अरे तू जो मुल्ला जो माइक में पढ़ दिया, ये इल्म उसना ना हुआ, हकीकत में सुन्नी बन जाए। सही ये अहमद रजा खां के जो चाहने वाले हकीकत में बन जाए। बन जाए। गलत है वो लोग जो उम्मत मुस्तफा गुमराह कर रहे हैं, फिरका पत्ती कर दी, ये फिरका अलग, ये फिरका अलग, ये फिरका अलग, ये फिरका अलग, फिरके अलग कर दिए। क्या कर दिए? फिरके अलग कर दिए। अरे फिरका अलग है, उस फिरके वाले के ऊपर तेरा अल्लाह कौन है? कौन है? सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। अब बता तू कलमा किसका पढ़ता है? कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे अल्लाह जिससे चाहे ऐसी मोहब्बत कर ले। सही हर पेड़ आम का होता भाई, सही हर पेड़ हम का आम की पूरी लाइन लगा दिया, 10 पेड़ आम के, सही 10 पेड़ एप्पल के। सही जरूरी नहीं कि जो आम का पेड़ है उस पे आम आ ही जाए। सही अरे कुछ पेड़ आम के होते हैं लेकिन उस पर फल नहीं आते हैं। सही बिल्कुल 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 हक 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 जरूरी नहीं कि उस पर फल आए, वो तो जब तक रब ना चाहे, सुभान अल्लाह और रब चाहे तो सूखे के अंदर फल लाए। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। तो ध्यान रखे कि हम आशिक रसूल है, गुलामाने रसूल है, गुलामाने पंचायतन है और सैयदों के गुलाम है। तमाम औलादे रसूल के हम गुलाम है। हमारी गुलामी की औकात में रहना चाहिए। सही बिल्कुल वो अल्फाज वो इतना इल्म उसने ना कर ले जो गरीब नवाज ने ना किया हो। सही कभी गरीब नवाज ने ऐसा नहीं करा जो आज हम कर रहे कर रहे हैं। सही हैं। कभी खाजा मोहद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज, गौसे आजम, इन लोगों ने इल्म उसने ऐसा नहीं वापरा। इनका तो इल्म उसना उसको बोलते हैं कि हर हाल में जो इमाम